गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक की कन्नड़। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्लस टू फिजिक्स, चाहे जो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई और एनी अदर स्टेट बोर्ड के सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और डेरिवेशन आपके सरल भाषा में। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरे चैनल दीपक ई कर्नर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप आसानी से देख पाए। आज हम कूलॉम्स लॉ के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Coulomb force between two charges is an action-reaction pair. Is it true or false? Think about it and give the answer. Coulomb force दो चार्जेस के बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है? आंसर इज ट्रू। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर डेक्स फोर्सेस। यू हैव टू fill the blanks. Electrostatic force as well as gravitational force are belonging to which force? Think it. It is the similarities, properties you can say. So answer will become your both are conservative as well as central forces. Next question, both Coulomb's law and gravitational law obey Deck's law. Both are force inversely proportional to your r square, which we called as inverse square law. So both are following inverse square law. Next question, which force is dependent on medium from these two forces, gravitational or electrostatic forces? Which one is depending on medium and which one is independent of the medium? Newton's law of gravitational force is what? F is equal to g m1 m2 by r square, and your gravitational force is this one. So next one is your electrostatic force is k q1 q2 by r square. Between these two, capital G and capital K, which is dependent on medium? You have to give the answer. So answer is electrostatic forces, because K equal to 1 by 4 by epsilon naught is dependent on medium. Next question, the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charge is 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton when these are separated by a distance of 5 Armstrong. How many electrons are missing from each ion? Okay, you have to solve it. As we know, Coulombian force or electrostatic force F equal to K Q1 Q2 by R square. But here in this our numerical it is given that Q1 equal to Q2 equal to Q. Both are equal. So we are assuming as Q. So Q1 into Q2 equal to Q square. So F equal to K Q square by R square. Again in our numerical all the values are given. F is equal to 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. Similarly K already we know it, electrostatic force constant. Again R is given in Armstrong 5 Armstrong. So Armstrong 1 Armstrong equal to 10 to the power minus 10 meter. Okay, so after replacing all the numericals value, we will get the value of Q as 3.2 into 10 to the power minus 19 Coulomb. Again from the quantization of charge, one of the property
that is Q equal to N into E. That implies N equal to Q by E. Here Q is 3.2 into 10 to the power minus 19 Coulomb divided by electronic charge is what? 1.6 into 10 to the minus 19 Coulomb. So we are getting the number of electrons transferred from each body is 2. Next question is, figure shows two charged particles on an axis. The charges are free to move. At one point, however, a third charged particle can be placed such that all three particles are in equilibrium. First bit, is that point to the left of the first two particles, or to their right, or between them? Second bit, should the third particle be positive or negative charged? Bit third, is the equilibrium stable or unstable? Okay, solve this one by pushing the pause button, then go to the explanation. देखो बच्चों, ये दो ठो चार्ज है, -3Q और एक +Q. हमें और एक चार्ज Q0 रखना है और Q0 आइदर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, वो हम देखेंगे. सो देयर आर 3 रीजन, 1, 2 and 3. लेफ्ट ऑफ these two charges, right of these two charges and in between these two charges. 3 रीजन्स में एक एक बार सबको रख के देखेंगे और उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करके देखेंगे किसमें अचीव हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा है. पहले हम इसमें देखते हैं रीजन 1 में. रीजन 1 में अगर मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज Q0 को रखता हूं, इसको A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको C ले लिया, तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स आने वाला है? फोर्स ऑन C ड्यू टू A. ये दो ठो क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है, सो ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स. सो दिस वन इज FCA एंड दिस इज योर FCB. पॉजिटिव, सो इट इज रिपेलिंग. गॉट इट? सो ये एक डायरेक्शन में आ रहा है, ये दूसरा डायरेक्शन में आ रहा है, सो हम बोल सकते हैं ये दो ठो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकता है. बट force is directly proportional to the product of charges Q1 into Q2 and it is inversely proportional to the square of the distance between these two. So अगर हम देखेंगे इसमें तो क्या हुआ? इसमें अगर देखेंगे FCA क्योंकि ये पास में है, नजदीक में है, R लेस हो रहा है, कम हो रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड 3 into this one 3 टाइम्स होगा क्योंकि ये 1 टाइम्स है. सो मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो रहा है, ये डिस्टेंस भी कम हो रहा है, इसीलिए FCA ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू FCB. सो क्या होगा? FCB ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये जो चार्ज पार्टिकल है उस तरफ चला जाएगा. गॉट इट? उस तरफ चला जाएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं हो पाएगा. सो हमारा जो लेफ्ट ऑफ दीज टू चार्जेस ये रीजन नहीं आएगा. सेकेंड में क्या है? सेकेंड में ये है. सेकेंड में देखते हैं. सेकेंड में अगर मैं Q0 को हम रखते हैं प्लस Q0 को, सो अगेन देयर विल बी 2 फोर्सेस FC ड्यू टू B. पॉजिटिव है, सो रिपल्सन करेगा, इस तरफ आएगा. सिमिलरली ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सो पॉजिटिव अट्रैक्शन करेगा, सो FCA, FCB एंड FCA. ओके, सो ये दोनों क्या है? ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सकता है. लेकिन हम देखेंगे Q0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, सो अगर मैं Q0 को इस तरफ रख रहा हूं तो हमें क्या है? हमें 3 चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम. तीनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आना चाहिए. सो 1, 2, 3 तीनों आना चाहिए. सो अगर ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन इसको देखते हैं इक्विलिब्रियम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो इसके ऊपर देखने से अगेन देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस 2 चार्जेस. सो फर्स्ट वन इज योर FBC कहाँ आएगा? F ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस वन. पॉजिटिव है, सो रिपेल करेगा, इस तरफ आएगा. गॉट इट? अगेन दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, तो किस तरफ आएगा? अगेन दिस विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस वन, सो FBA दिस वन. सो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ हो रहा है, इसीलिए ये जो चार्ज है इस तरफ चला आएगा. ये
ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव नहीं करेगा, सो ये भी नहीं होगा। गॉट इट, ये भी नहीं होगा। यहीं पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो, अगर नेगेटिव चार्ज रख रहा हूं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रखने से, देखो नेगेटिव चार्ज रखने से क्या होगा, तीनों में करके देखते हैं। सो फर्स्ट दिस वन करते हैं, नेगेटिव चार्ज रखा है, सो F on B due to C, F on B due to C is towards this one, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, F B C। सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग दिस वन, सो F B A। ये हो सकता है बिकॉज दिस टू आर फेसिंग इन ऑपोजिट डिरेक्शन। सिमिलरली ये भी हो सकता है क्योंकि एफ सी ए नेगेटिव नेगेटिव है, रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, अगेन ये पॉजिटिव है सो अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, सो ये भी हो सकता है। इसके ऊपर देखते हैं फोर्स कहाँ कहाँ पे गिर रहा है। सो एफ ए बी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, एफ ए बी इस तरफ चलाएगा, इस तरफ के ऊपर, अगेन एफ ए सी ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा इस तरफ, सो तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सकते हैं। सो कौन सा राइट होगा, नेगेटिव होना चाहिए हमारा चार्ज और राइट साइड होना चाहिए। गॉट इट। थर्ड वन जो रीजन है उसके ऊपर देखते हैं। अगर मान लो पॉजिटिव रखा हूं तो पॉजिटिव रखा हूं तो क्या होगा, पॉजिटिव रखा हूं देन एफ ऑन सी ड्यू टू ए क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग, सो डिरेक्शन इज अलोंग or towards A, FCA is in this direction. Similarly पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, so again इस तरफ direction, so F on C due to B is what, in this direction, so both are facing in same direction, एक ही direction में हो रहा है, so ये जो चार्ज पार्टिकल है, थर्ड चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, so ये रीजन भी नहीं होगा। so हमारा ये थर्ड रीजन भी नहीं होगा। कौन सा होगा, राइट ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल होगा फर्स्ट बीट का आंसर। सेकेंड बीट का आंसर क्या होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा होगा, इसमें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, नेगेटिव ही हो रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रहा है। व्हाई, बिकॉज द सिस्टम इज हैविंग थ्री चार्ज पार्टिकल्स एंड ऑल दी थ्री चार्ज पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, लेकिन ये नहीं हो रहा है जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं। नेगेटिव लेने के बाद ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो नेगेटिव होगा। थर्ड बीट देखते हैं, थर्ड बीट क्या बोल रहा है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम इन व्हिच द बॉडी रीगेन्स और रिकवर्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब ये तीनों है, -3q + q - q नॉट। अगर मैं -q नॉट को जरा से भी इधर उधर करता हूं, सो तीनों का जो चार्ज पार्टिकल है, तीनों चार्ज पार्टिकल जहां पे रहे थे उधर ही रहना चाहिए, रुकना चाहिए, बार में आना चाहिए। ओके, तो अगर मैं इसको इस तरफ मूव कर रहा हूं, लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूं सी चार्ज पार्टिकल को, थर्ड चार्ज पार्टिकल को, तो ये तो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा है। FCA is in this direction, FCB is in this direction, so they are cancelling each other at one point. Okay, but when we will consider the charge particle A -3q को देखने के बाद क्या होगा, -3q FAC, F on A due to C कहाँ पे होगा, नेगेटिव नेगेटिव है, रिपल्सन करेगा इस तरफ डिरेक्शन। F on A due to B कहाँ होगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, सो F A B ये हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, F A C इस तरफ हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, सो जब हम इसको मूव कर रहे हैं इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। एज डिस्टेंस इज lesser than the original, so force will become what, force FAC will increase, rather FAB is as it is। FAB जहां पे था, जो मैग्नीट्यूड में था वही मैग्नीट्यूड है, लेकिन FAC क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ये FAC इंक्रीज हो जाएगा, FAB वहीं का वहीं होगा, तो क्या होगा, बॉडी इस तरफ चला जाएगा। यस और नो, अगर बॉडी इस तरफ चला जाएगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव नहीं हो रहा है, सो ये क्या होगा, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज Q1 which is equal to 20 microcoulomb
due to the charge of Q2 which is equal to minus 10 microcoulomb if the positions of the charges are given as P which is given as 1, minus 1, 2 and Q given as minus 1, 1 and 1 as the coordinates. Okay, so you have to calculate the force on one due to others. Here you have to calculate the force on one due to two. इधर क्या दिया हुआ है, दो ठो चार्ज दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है. Q1 का कोऑर्डिनेट्स हो गया 1, -1, 2 और Q2 का कोऑर्डिनेट -1, 1 एंड 1. ओके, along x direction, y direction and z direction. So along I cap, along j cap, along k cap. ये दिया हुआ है. सो हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. सो Q1 दिया हुआ है पॉजिटिव 20 माइक्रोकूलम, Q2 दिया हुआ है -10 माइक्रोकूलम. एज दीज टू आर अनलाइक चार्जेस, dissimilar charges, so they are attracting each other. Okay, so Q1 क्या होगा, Q1 attract होगा towards Q2. Okay, so the direction is from point P to point Q or from 1 to 2. Yes or no, from Q1 to Q2. So direction will be R1 to 2 cap because unit vector will give the direction and the magnitude is K Q1 Q2 by R square. So first of all you have to calculate the unit vector, this one R1 to cap. हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो वेक्टर R12 इज इक्वल टू व्हाट, R12 is equal to R2 minus R1. So I have done here R2 minus R1 by mode of that one. R2 minus R1 मतलब क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट से इसका कोऑर्डिनेट हमें माइनस करना है. -1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 I cap प्लस 1 minus -1 1 minus -1 j cap plus 1 minus 2 k cap. Okay, this is the position vector divided by your modulus of this one. -1 क्या होता है, -2 होता है, -2 I cap, this one 1 minus plus 1 plus 1 2 j cap, this one 1 minus 2 minus k cap. So इसका ax कितना हुआ, -2 का स्क्वायर. Again this one is ay plus 2 square. Again this one -1 square. Okay, so 2 square 4, 2 square 4 and this one 1 square 1. Root under of all these things is what, root under of 9 equal to 3. Okay, so the unit vector we will get here -2 by 3 I cap plus 2 by 3 j cap minus 1 by 3 k cap. Okay, next we have to use here. Okay, f equal to k q1 q2 by r square. So we have to replace all the numerics, all the numbers. Okay, 9 into 10 to the power 9, 20 micro, so it is 10 to the minus 6. Again 10 micro, 10 into 10 to the minus 6 divided by r square. R is what, magnitude of this position vector from P to Q. So this is 3 square. Okay, into this one our unit vector here. Okay, after simplifying all we will get the answer is -4 by 3 I cap plus 4 by 3 j cap minus 2 by 3 k cap into 10 to the power -1 Newton. As it is force, the unit is Newton. So our answer is this is. अगर आप इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. ओके, धन्यवाद.